goodwill towards men. A very warm morning to one and all. Hearty welcome to our respected manager, Father Andrew, our principal, Father Gibson, primary headmistress, Sister Zita, pre-primary headmistress, Sister Vijaya, assistant parish priest, Sister Father Ashish, coordinators of the middle and senior wing, dear teachers and all my friends. I, Akansha, And I, Ashish. we are here to introduce you to our joyous Christmas celebration. Christ has welcomed you for the glory of God. Christmas is a festival of hope and love, a collection of feasts, each reflecting a facet. It is the birthday of our Savior Jesus Christ, the appearance of God's goodness and kindness in our midst. Dear gathering, with great pleasure in our hearts and smile in our face, let us invite Jesus into our hearts. On behalf of the entire school, I would like to extend a heartfelt. May all your troubles soon be gone. O Christmas light, keep shining on. To continue our prayer service, let us listen to our religious bhajan by our school choir. Ashish, Yes, Akanksha. don't you think there's something missing? What? Something which we do every year? Are you thinking about Christmas carols? Exactly. The best way to spread Christmas cheer is singing it loud for all to hear. So let's enjoy a harmonious carol in an innovative way. Sweet silver bells all seem to say, "Don't get away." Christmas is here, bringing good cheer to young and old, weak in the mood. Ding dong, that is a song with joyful ring, all caroling. One seems to hear words of good cheer from everywhere. Oh, how they march, raising their sound, all in a tear, telling it, telling the ring, while people sing songs of good cheer. Christmas is here, merry, 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 merry Christmas, merry, 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 merry Christmas. God on His way, on with our end, there's a to go to everywhere.
taka taki tata. Taka dini taka ta. Taka jonu taka dini. Jonu taka dini. Jonu taka dini. Jonu taka dini. Taka jonu taka. Ta ting dari kada kada. Ting dari kada kada. Ting dari kada kada. जिसने रचा ये संसार, जिसने रचा ये संसार, हर पल उसका करूं अभिनंदन। जिसने रचा ये संसार, Our little stars from classes nursery A and B have been practicing hard to present a fun and exuberant dance. Jingle bells, jingle all the way. Santa Claus is coming along, riding on a sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Santa Claus is coming along, riding on a sleigh. La la la, la la, la 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 la. मिस सेंटा क्लॉज का घर कहाँ है? चाँद पे। हमें भी वहाँ ले चलिए ना। अच्छा। आओ तुम्हें चाँद पे ले जाएं, प्यार भरे सपने सजाएं, छोटा सा बंगला बनाएं, एक नई दुनिया बसाएं। ओ आओ तुम्हें चाँद पे ले जाएं, प्यार भरे सपने सजाएं, छोटा सा बंगला बनाएं, एक नई दुनिया बसाएं। ओ आओ तुम्हें चाँद पे ले जाएं। Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año de felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Carries a message of devotion, unity, and the eternal bond between humanity and the divine. With hearts full of anticipation, let's welcome our talented choir to take the stage. Get ready to be mesmerized as they bring the energy and soul of Qawwali alive. नाम मसीहा नहीं होता, कोई शख्स गुनाहों से
आजाद नहीं होता। ना होते अगर पैदा रूहे पाक से यीशु, होता है खुदा कैसा मालूम ना होता। वो एक बालक है फिर भी लेकिन, वो एक बालक है फिर भी लेकिन, अजीब हंसी भरा
conflicts and anxieties. The story of Jesus serves as a powerful reminder that peace is not just the absence of war, but the presence of harmony, understanding, and goodwill among all people. As we continue, let us open our hearts to the message of peace that the birth of Jesus brings. प्रभु यीशु का जन्म मानव जाति के प्रति ईश्वर का अपार प्रेम है। इस प्रेम, दयालुता और कृपालुता को मानव तक पहुंचाने के लिए ईश्वर ने अपने इकलौते बेटे को इस दुनिया में भेजा, जिसे संपूर्ण मानवता प्रभु यीशु के नाम से जानती है। जैसे कि पवित्र वचन कहता है, ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश न हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। प्रभु यीशु इस दुनिया में शांति का पैगाम लेकर आए और उन्होंने यही चाहा कि सारी मानवता इस शांति का अनुभव अपने जीवन में करे। शांतिदाता यीशु आपके साथ रहें और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। क्रिसमस का पर्व हमें शांति का संदेश देता है और प्रभु हमसे यही चाहते हैं कि इस शांति को सारे संसार में फैलाएं। आप सभी के लिए प्रस्तुत है क्रिसमस पर आधारित एक नृत्य नाटिका, शांतिदाता यीशु। चारों तरफ खुशियों का माहौल है, हर तरफ सजावट है, तारे हैं, सेंटा क्लॉज है। लोग कहते हैं प्रभु यीशु हम सब के लिए शांति और भाईचारा लाए थे। लेकिन मेरे जीवन में क्या है? मेरे पापा 6 साल पहले हमें छोड़कर चले गए थे। मेरी माँ का 3 साल पहले देहांत हुआ और मैं इस अनाथालय में हूँ। प्रभु यीशु, क्या शांति मेरे लिए नहीं थी? क्या बात है रॉकी, क्यों उदास हो? क्या सोच रहे हो? जॉन, मेरे मन में मेरे जीवन और दशा को देखकर बड़ी अशांति उत्पन्न हुई है। क्या तुमने इस दुनिया का अमानवीय व्यवहार नहीं देखा है? यहाँ कोई किसी पर विश्वास नहीं करता और शांति, मुझे तो सब तरफ अशांति ही अशांति दिखती है। बस 15 मिनट और फिर सारी रोशनी मध्यम कर दी जाएगी और फिर हम क्रिसमस मनाएंगे। अरे भाई, तुम दोनों इतना मुंह लटकाकर क्यों बैठे हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि आज क्रिसमस है? कौन सी बड़ी बात है? आज क्रिसमस की शाम है और हम यहाँ बैठे हैं टॉफी की खाली डिब्बे और पुराने कपड़ों के साथ। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि सेंटा क्लॉज रात में बच्चों के घर आते हैं? मुझे तो नहीं लगता, और वो भी इस गंदे अंधेरे अनाथालय में। वो क्यों आएंगे? अरे जॉन, वैसे तो मैं यहाँ कई सालों से काम कर रहा हूँ, पर सचमुच मैंने सेंटा क्लॉज को कभी देखा तो नहीं। पर मुझे ये जरूर पता है कि क्रिसमस की सुबह यहाँ हमें कई गिफ्ट मिले हैं। इन्हें कब और कौन लाया कुछ नहीं पता। पर क्या तुम्हें लगता है कि क्रिसमस का महत्व केवल इन तोहफों, कपड़ों और मिठाइयों तक ही सीमित है? ये तो हर फालतू बात पर भी भरोसा करता है। चलो, आज मैं तुम्हें 2000 साल से भी पहले की एक बात सुनाता हूं। जब एक
छोटे से बच्चे के रूप में क्रिसमस का सबसे बड़ा तोहफा दुनिया में आया। क्रिसमस पर छोटा सा बच्चा तोहफा, ये क्या बात है? चुप रहो रॉकी, प्लीज चुप रहो। बहुत समय से किसी ने हमें कोई अच्छी कहानी नहीं सुनाई। हाँ, माँ से ही आखिरी बार कहानी सुनी थी, पर उनके बाद किसी ने हमें कोई कहानी तो क्या, प्यार से दो बातें तक नहीं कही। क्या तुमने कभी बाइबल पढ़ी है? नहीं, कभी नहीं, पर मैंने आज चर्च में ढेर सारी देखी थी। बिल्कुल ठीक। इसमें लिखा हुआ हर शब्द प्रभु के मुंह से निकला है। ये ही हमें उस बहुत विशेष और चमत्कारी बालक के बारे में बताती है जिसका नाम यीशु था। वो बालक धरती पर हमारा राजा बनकर आया था और उसी से हमें प्रेम, शांति और असीम हर्ष का संदेश प्राप्त हुआ था। अरे ये सब बकवास है। क्रिसमस से इन सभी बातों का कोई मतलब नहीं है। ये शांति, प्रेम, भाईचारा, विश्वास, भरोसा, ये सब किताबी बातें हैं। इनके बारे में सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। सब मतलबी है, खुदगर्ज है, कोई किसी का नहीं। बात बहुत पुरानी है। कैसर अगस्तस राजा ने फरमान जारी किया है कि सभी लोगों की जनगणना हो तथा उन पर कर लगाया जाए। इसलिए सभी लोग अपने नगर की ओर चल दिए। नाजरेत शहर के पास की जगह गैलीली से यूसुफ भी दाऊद के नगर बेतलेहम की ओर अपना नाम लिखवाने चल पड़ा। यूसुफ के साथ उसकी गर्भवती पत्नी मरियम भी थी, जिसकी कोख में प्रभु यीशु थे। और जब वे बेतलहम में थी, तभी मरियम की गर्भावस्था पूर्ण हुई। पर उन्हें सिर छिपाने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही थी ताकि बालक को जन्म दे सके। Angels we have heard on high, sweetly sing.
मैं समझ सकता हूं कि तुम बहुत तकलीफ में हो और थक भी गई हो। शायद इस घर में हमें थोड़ी जगह मिल जाए। ये सज्जन शायद इस सराय के मालिक हैं। भाई, क्या आपके पास कोई खाली कमरा है? मुझे माफ करो भाई, यहाँ कोई कमरा खाली नहीं है। कृपया समझने की कोशिश करिए महोदय। मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करता हूँ कि कोई भी जगह हमें दे दीजिए जहाँ हम सिर छुपा सके। मैं समझता हूँ भले इंसान, पर मेरे यहाँ एक अस्तबल खाली है। वहाँ कुछ भूसा पड़ा है। आप दोनों वहीं विश्राम कर सकते हैं। मैं भली भांति जानता हूँ कि तुम्हारी कोख में प्रभु यीशु हैं और ये जगह उनके जन्म के लिए बहुत खराब है। पर मेरी मजबूरी है, हमें दूसरी कोई जगह नहीं मिल सकती। खुशी से
अरे सुनो सुनो जोश, तुम तो कह रहे थे कि ये किसी राजा की कहानी है। राजा कहीं अस्तबल में पैदा होते हैं? ये तुम कहाँ की गप मार रहे हो? मुझे तो पहले ही मालूम था कि ये केवल हमारा समय बर्बाद कर रहा है इन ऊट पटांग बातों से। अस्तबल में पैदा होने वाला दुनिया में शांति कैसे लाएगा भला? अरे भाई, मुझे तो लग रहा था कि तुम शायद सुनोगे ही नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब तो मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। अरे अरे प्यारे दोस्तों, अभी बहुत कुछ सुनने समझने को है। अरे यार, चलो सुनाओ। वैसे भी अभी कुछ करने को तो है ही नहीं। और उसी देश में कुछ दूरी पर रात में गडरिये अपनी भेड़े मैदान में चरा रहे थे। आज की रात कितनी विचित्र है। सही कह रहे हो। मुझे आभास हो रहा है कि कुछ शुभ बात होने वाली है। डरो मत, सुनो, मैं शुभ समाचार लाया हूँ। ये सुसमाचार सभी लोगों के लिए है। तुम सबका भला करने और सही राह दिखाने के लिए दाऊद के नगर में प्रभु यीशु ने जन्म लिया है, जो सबका मसीहा है। बालक रूपी प्रभु पुराने कपड़ों में लिपटे हुए एक अस्तबल की चरनी में हैं। तुम इसी से उन्हें पहचानोगे। उस चमकदार तारे को देखो और उसकी ओर देखते हुए चलते जाओ। ये तारा तुम्हें प्रभु तक पहुंचाने में सहायता करेगा। ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा हो, धरती पर सभी जनों को शांति मिले। चलो हम सब बेथलेहम चलें। स्वर्गदूतों की बात कभी भी गलत नहीं हो सकती। चलो इस तारे को सहारा बना हम सब प्रभु के दर्शन करें। सच्चा है वो चरवाहा जो ढूंढे हमें घूम घूम। यीशु है वो चरवाहा
चरवाहा जो ढूंढे हमें घूम घूम घूम। यीशु है वो चरवाहा जो ढूंढे हमें घूम घूम घूम। यीशु है वो चरवाहा जो ढूंढे हमें घूम घूम घूम। सच्चा है वो चरवाहा जो ढूंढे हमें घूम घूम घूम। अच्छा, क्या बात है भाई। स्वर्गदूत ने शांति और प्रेम के बारे में बताया। अविश्वसनीय। पर ये कैसे स्वर्गदूत हैं जो इतनी नीच जाति के और गरीब गडरियों से बात करते हैं? कैसा राजा होगा वो जिसके आसपास गरीब बेघर गडरिये हों? कौन सा राजा ये सब पसंद करेगा? वही राजा जो तुम्हारी और मेरी रक्षा करता है। अच्छा, बहुत बढ़िया। अगर वो हमारी रक्षा करने आए थे तो उन्होंने हमारे पिताजी को हमसे दूर क्यों जाने दिया? क्यों मरने दिया हमारी माँ को? क्यों हमें अनाथ किया? क्यों हमें दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया? मुझे नहीं चाहिए इस किस्म की शांति लाने वाला राजा। भाई, तुम जानकर चकित होगे कि प्रभु यीशु कभी भी उस राजा की तरह नहीं रहे जैसे यहां धरती पर होते हैं। उन्होंने कभी गहने और महंगे कपड़े नहीं धारण किए, बल्कि कितने ही लोग तो ऐसे थे जो उनके जन्म की खबर मिलते ही शिशु अवस्था में ही उनको मार डालना चाहते थे। जल्दी बताओ मुझे, कहां है ये प्रभु यीशु? कहां जन्म हुआ है उसका? और ये एक बालक एक राजा कैसे हो गया? हे महाराज, नबी की भविष्यवाणी के अनुसार वे दाऊद के नगर बेतलहम में जन्मा है और वही सब लोगों पर राज्य करेगा। नहीं, राजा मैं हूं। मैं राज्य मैं करूंगा। मुझे इस मामले की तह तक जाना होगा। कहां हैं वो तीनों ज्ञानी पुरुष? उन्हें तुरंत हाजिर किया जाए। तुम सब तुरंत बेतलेहम जाओ। ध्यान रहे, जल्द से जल्द उस नवजात राजा को खोजो और जैसे ही वो तुम्हें मिले तुरंत मुझे सूचित करो। मुझे भी उसके दर्शन करने हैं। चलो। अगर सचमुच ये नवजात बालक परमेश्वर के पुत्र हैं, तो हमें उनके लिए कुछ उपहार अवश्य ले जाने चाहिए। हाँ, ऐसा उपहार जो राजा के योग्य हो। सोना, मुर और लोबान यही उत्तम होंगे नवजात राजा के लिए। ठीक है, चलो। बेतलहम में चमका एक तारा, वो तारा है यीशु हमारा। वो तारा है यीशु हमारा।
देखो तारा, देखो पूरब में चमका एक तारा, जन्मा है यीशु हमारा, हो देखो जन्मा है यीशु हमारा। पूरब में देखो चमका एक तारा, जन्मा है देखो यीशु हमारा। पूरब में देखो चमका एक तारा, जन्मा है देखो यीशु हमारा। पूरब में देखो चमका एक तारा, जन्मा है देखो यीशु हमारा। पूरब में देखो चमका एक तारा, जन्मा है देखो यीशु हमारा। देखो पूरब में, देखो पूरब में, देखो पूरब में चमका एक तारा, जन्मा है यीशु हमारा। वो देखो जन्मा है यीशु हमारा। को देखो ज्ञानी है आए, साथ वो अपने भेद भी लाए। मिलने को देखो ज्ञानी है आए, साथ वो अपने भेद भी लाए। मिलने को देखो ज्ञानी है आए, साथ वो अपने भेद भी लाए। मिलने को देखो ज्ञानी है आए, साथ वो अपने भेद भी लाए। सोना लोभान, सोना लोभान, सोना लोभान गंधरस बोलाए, यीशु का दर्शन वो पाए। ओ देखो यीशु का दर्शन वो पाए। देखो तारा, देखो तारा, पूरब में तारा, देखो तारा, देखो तारा, पूरब में तारा, देखो तारा, देखो तारा, पूरब में तारा, देखो तारा, देखो तारा, पूरब में तारा। देखो पूरब में, ओ देखो पूरब में, देखो पूरब में चमका एक तारा, जन्मा है यीशु हमारा। ओ देखो जन्मा है यीशु हमारा। वाह वाह, मुझे भी अगर क्रिसमस पर कुछ सोना मिल जाए तो मैं भी अमीर हो जाऊंगा। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, पर राजा हेरोद के मन में कुछ अलग ही षड्यंत्र चल रहा था। मुझे उसके बारे में सुनकर पहले से ही शक हो रहा था। लगता है उसकी नीयत ठीक नहीं है। राजा हेरोद नवजात प्रभु यीशु से बहुत ईर्ष्या और घृणा करता था। उसे इस व्यक्ति से नफरत हो रही थी कि उससे भी अधिक ताकतवर दूसरा कोई हो सकता था। इसलिए उसने एक बहुत ही जालिम फरमान जारी किया। मैं राजा हेरोद ये फरमान जारी करता हूं कि पूरे देश में 2 साल या उससे कम आयु के शिशुओं का कत्ल कर दिया जाए। जो भी इस हुक्म की नाफरमानी करेगा उसे मृत्यु दंड मिलेगा, मृत्यु दंड।
उफ, इतना जालिम, इतनी क्रूरता। वो इंसान नहीं, शैतान था। प्रभु यीशु तो अभी बालक ही थे। जलन और क्रोध इंसान की सोचने समझने की शक्ति का नाश कर देती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। हेरोद के इस फरमान का नतीजा ये हुआ कि वहां सैकड़ों नन्ही जानें कत्ल कर दी गई। मुझे अभी भी समझ में नहीं आया है कि क्रिसमस का शांति से क्या संबंध है। अगर प्रभु यीशु पैदा ही ना हुए होते तो भला इतने मासूम बच्चों का कत्ल क्यों होता? और ये 2000 साल पुरानी बात है। अब इसका भला हमसे क्या मतलब? वो अब हमें कैसे शांति प्रदान करेंगे? प्रभु सबके आंसू पोंछेंगे। ना कोई मृत्यु होगी, ना कोई दुखी, ना रोना और ना ही कोई दर्द। सब पुराने दोष दूर हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि मुझे माँ और पिताजी के लिए दुखी नहीं रहना होगा। और अनाथालय में रहने के कारण स्कूल के बच्चे हमारा मजाक नहीं बनाएंगे। तो हम प्रभु की मुक्ति को कैसे अनुभव कर सकते हैं? तुम्हें प्रभु यीशु और उनकी शिक्षा को अपनाना होगा। क्या ये बहुत मुश्किल होगा? नहीं, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि ये जीवन का सबसे आसान कार्य है। तुम्हें दिल से उन्हें अपनाना होगा। उनके प्रति संपूर्ण समर्पण भाव रखना होगा। ये विश्वास करना होगा कि प्रभु ने हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए क्रूस पर अपनी जान दे दी। हमें अपने पापों को स्वीकारना होगा। मित्रों, आओ अपना जीवन बेहतर बनाएं, प्रभु की आराधना करें। इस क्रिसमस आइए यही उम्मीद की ज्योति अपने हृदय में जागृत करें। प्रभु यीशु के प्रेम में डूब जाएं। पूरा विश्व आज निराशा, हिंसा, भ्रष्टाचार, अशांति, नफरत, घृणा, धोखा, अविश्वास और अंधकार में छिपा हुआ है। आइए मिलकर ये काले बादल हटाएं और सुनहरा प्रकाश फैलाएं। His only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. The principal, Father Ashish, Sister Zita, Sister Vijaya, Sister Greta, members of the staff, and my dear students. We enjoyed this program, Christmas program, almost 1.5 hours. I know we all enjoyed this program, a wonderful program prepared by our teachers, students. I congratulate them, and on this happy occasion, I wish all of you a very happy Christmas and happy New Year. We are just concluding our year 2024, and we have to thank God for many more things that has gone through in our institutions. Last 12 months we have been here, various programs we organized, various activities we had, your studies, and the annual days, our jubilee celebration of our college. So many good activities have taken place, and we thank the Lord for this year 2024. And we also ask the Lord to continue to bless us, all of us, in the year 2025, as we are going to soon enter in this 2025 years. We ask the Lord to bless our institution, all our teachers, our students, our parents, authority people, police department, media people, all those who are contributing a lot are going to contribute in the year 2025. As we are celebrating this Christmas, what is this Christmas? Christmas
gives the message of joy. And greedy natures, putting down others, all these kind of things should be wiped away so that we may spread the message of Christ, joy, peace, hope and love. And so let us pray during this Christmas time. We pray for you all that God may continue to give their joy, peace, happiness, love to one another. I wish you all the best and I wish you a very happy Christmas and a happy New Year. May God bless each one of us, you, our teachers, our Father Principal, Father Gibson, our sisters, and the parents and all those who contribute a lot to our institutions. Thank you and God bless. I think Santa is on the way. Dashing through the snow, Santa, why don't you come down? Over the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight! Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in the one-horse open sleigh! Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in the one-horse open sleigh! Merry Christmas.
Christmas. Now the ground is wide. Go it while you're young. Take the girls tonight. Sing a sleighing song. Get up Octal Bay to 44 in speed and hitch 'em to an open sleigh and we will take the lead. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Sing a sleighing song. Get up Octal Bay to 44 in speed and hitch 'em to an open sleigh and we will take the lead. Oh, jingle bells, jingle all the way. Sing a sleighing song. Respected Father Andrew, Father Ashish, dear sisters, teachers, and my dear students. We wish you a Merry Christmas and God's choicest blessings. Christmas is a time, it's a time of joy. And Jesus came to this earth with a message of peace, joy, and happiness. And this is our prayer that all of you have in your life, in your personal life, in your family life. Joy, peace, and happiness. I read a story that I would like to share with you. Maybe we can connect that story with Christmas. A poor boy, he just happened to walk down to the streets, and then he happened to see a shop. And inside the shop there were toys, and he peeped in from that glass window, and he was looking at the toys and said, I'm a poor boy, I don't have enough money to buy those toys. And as he walked down in the street, he happened to see a cat on the road, and a car was passing by, and he was quite sure this car will go and dash that cat, and of course the cat will die. So what this boy did, he immediately jumped to the road and then saved that cat. And while saving that cat, he got hurt and he was taken to the hospital, and he was in the hospital for some time. And there he met a nurse. Of course, nurse was taking care of this boy. And this nurse came to know about this boy. Boy is very poor. And then it was the season of Christmas, and this lady purchased a toy for him and then gave that toy to this boy. And he was very happy. And then he thought that, his intention was to get a toy, but then he didn't have enough money to purchase it. But then an incident that took place in his life and gave him what he deserved, or rather expected for. My dear children, as I said, Christmas is a season of love, it's a season of happiness, joy. I want all of you, and it's a message that has been given. I wish to give you this message, whether you are in class 1 or whether you are in class 12th. Every one of us can do something better for the other. Every one of us can do something better. Maybe you may think, what can I do? I am a child, I don't have anything to give. But if you go deeper in, you can do something. Now, all of you must be having a lot of money sometimes. Sometimes you may not have. But then, can you share something what you have? Maybe you have a shirt, maybe you have a blazer, maybe you have something of that sort, maybe a pen, pencil. Can you share with someone who doesn't have? I think that's the message of Christmas.
I think we can do something so that someone else is happy because of my act, my generosity, my contribution. And this is the message I wish to give. And so that this Christmas season or this celebration of Christmas becomes meaningful. Otherwise, these external celebrations are the Santa coming, we are all happy, a joyful atmosphere. But then nothing is happening deep within. So this is my prayer, this is my wish. If you can, of course, there is a way. So this is my prayer, and once again wish you a Merry Christmas and a Happy New Year 2025 ahead. Thank you.